ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے ہم نے تراویح میں سورۃ الاعراف کو ختم کیا، انفال کی شروعات کی. کل ہم لوگ سورۃ آل عمران کی کچھ آیتوں کی تفسیر سنی، چوتھے پہرے کی پہلی کچھ آیتوں کی تفسیر سنی. اس کے اندر ایک صحابی کا واقعہ ہم لوگ سنے تھے. کل ہم لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں جو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ آپ کو جو پسند ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا. ایک واقعہ سنے، کسی کو نام یاد ہے؟ ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ انصاری پورا باغ لا کر اللہ کے نبی کے دربار میں رکھ دیے کہ لے لو، کیا کرنا چاہتے ہو کر دو. اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہم نے سنا. اسی میں آگے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں، آپ لوگ یہودیوں سے، کس سے؟ یہودیوں سے اپنے زیادہ تعلقات مت بناؤ. اپنی راز کی بات یہودیوں کو مت بتاؤ. اپنی راز کی بات اگر آپ ان کو بتاؤ گے، آپ ان کو اپنا قریبی اگر بنا کر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دن بھی وہ کبھی بھی امانت دار ثابت نہیں ہوں گے، آپ کو خیانت کریں گے. اگر ہم، کیونکہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر تکلیف ہوگی، مسلمانوں کو کہیں اگر سزا دی جائے گی، مسلمانوں کو اگر کہیں مارا جائے گا، تڑپایا جائے گا، تو یہ لوگ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں. یہودی بہت مزہ آتا ہے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو مارتے ہوئے دیکھ کر، مسلمانوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھ کر. مسلمان جب تڑپتے ہیں نا تو یہودیوں کو بہت مزہ آتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ خاص کر مسلمانوں کو، اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے یا آپ کے پڑوسی کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ دیکھ کر کیا کرو؟ خوش ہو. نہیں، خوش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم خوش ہوں گے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا، بلکہ ان کو تسلی دینا، ان کو دلاسا دینا. اللہ کے نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہی ہے جو جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پیر اور اس کی زبان سے اس کے سامنے والا مسلمان یعنی اس کا بھائی، اس کا پڑوسی محفوظ ہو، بچے، تب جا کر یہ مسلمان آدمی مسلمان کہلائے گا. اسی لیے اگر ہمارا پڑوسی، ہمارا ساتھی اگر کہیں تکلیف میں ہے، دیکھ کر خوش نہیں ہونا. اگر خوش ہوں گے تو ہم بھی یہودیوں میں سے شمار ہو جائیں گے. کیوں؟ دوسروں کو پریشانی میں دیکھ کر خوش ہونا ہے کس کی عادت ہے؟ کس کی عادت ہے؟ یہودیوں کی عادت ہے. دوسروں کو پریشانیوں میں دیکھ کر خوش ہونا یہ یہودیوں کی عادت ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. ایک مسلمان اگر کوئی تڑپ رہا ہے، گرچہ وہ مسلمان ہو، غیر ہو، کوئی بھی قوم کا ہو، اگر تڑپ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں. اب اسی بارے میں اللہ رب العالمین ایک جنگ کا تذکرہ کیا ہے جو ہجرت کے بعد دوسری جنگ ہے. کون سی دوسری جنگ؟ ہجرت کے بعد دوسری جنگ جو ہوئی، دوسری لڑائی جو ہوئی، وہ کون سی؟ جی بارک اللہ، کون سی؟ جنگ احد. اس کے اندر جنگ بدر کے بعد سب سے پہلی جنگ ہوئی 2 ہجری میں، جنگ بدر. اس کے بعد دوسری جنگ جو ہوئی جنگ احد. اس کے اندر ہم جانتے ہیں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ کتنے مسلمان؟ 70 مسلمان مارے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. آپ کے سامنے کے دانت گر گئے، آپ کے دانت شہید ہوئے. دیکھیے جنگ بدر میں 70 مشرکین کو قتل کر دیا گیا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو، اور 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا. اب ان لوگوں کو، جتنے بھی مشرکین تھے، ان کو بے چینی ہو گئی،
बेचैन शुरू हो गई। अब किसी न किसी तरीके से एक मर्तबा हम लोग जंग हार चुके हैं, एक मर्तबा हम लोग हमारी हार हो गई है, दूसरी मर्तबा किसी न किसी तरीके से मोहम्मद को उसके साथियों को खत्म कर देंगे, इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे। ये सोचकर 1 साल तैयारी की। कितने साल? 1 साल पूरी तैयारी करे। उसके बाद सन 3 हिजरी में शव्वाल में ये लोग मदीने पर हमला करने के लिए, मदीने पर हमला बोलने के लिए, नबी को सताने के लिए, नबी की गर्दन उड़ाने के लिए लोग निकल गए। अब अल्लाह के नबी को कुछ भी नहीं मालूम। खबर देने वाले कौन? खबर देने वाले कौन? आकर बोलने वाले कौन? हजरत अब्बास। ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में कौन लगते? चाचा। आकर बोले, हालांकि वहीं मदीने में नहीं थे, आकर बोले मोहम्मद होशियार हो जाओ, मोहम्मद खबरदार हो जाओ, आपकी जान को खतरा है, मुसलमानों की जान को खतरा है, इस्लाम को खतरा है, कोई कुछ ना कुछ तदबीर इख्तियार कर लो। अब अल्लाह के नबी को कुछ भी समझ में नहीं आया। सारे सहाबा को बुलाए, आ जाओ आ जाओ। सारे सहाबा आ गए, उसमें कुछ दूसरे भी आए, मुनाफिकीन भी आए। अब अल्लाह के नबी ने सबसे मशवरा करके पूछा, ये बताओ जंग मदीने में करें या मदीने के बाहर जाकर करें? मदीने में करें या मदीने के बाहर जाकर करें? तो उसमें से एक मुनाफिकीन का सरदार, रईसुल मुनाफिक इसको कहा जाता है, कौन? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। आकर बोला, ऐ मोहम्मद एक काम करो, मदीने में ही लड़ेंगे, हम मदीने में लड़ेंगे, मैं मेरे सिपाहियों को ला कर दूंगा। देखिए कैसे मुनाफिकीन कैसे होते हैं, सामने एक तरफ पीछे एक तरफ, सामने मदद करने के बराबर बात करते हैं, पीछे जाकर बहुत बुरी तरीके से तकलीफ देते हैं। कहा कि मैं भी अपने सिपाहियों को लाऊंगा, मेरे साथियों को लाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, बाद में अल्लाह के नबी बोले, नहीं, हम लोग जंग क्या है मदीने में नहीं करेंगे, मदीने के बाहर जाकर करेंगे। कुल मिलाकर उस वक्त मुसलमानों की तादाद 1000 हुई शुरू में, क्योंकि 300 अब्दुल्ला बिन उबई क्या है अपने 300 साथियों को लाया, 700 मुसलमान थे, 700 या उससे कम थे, कुल मिला के 1000 हो गए। अब जा रहे थे दरमियान में, अचानक देखिए कैसा रंग बदलते हैं लोग, जैसा गिरगुट रंग बदलता है वैसा बदल कर मुसलमानों को तकलीफ देते हैं। आकर बोला, क्या मोहम्मद हमारा हाथ नहीं होता, हम आपके साथ नहीं दे सकते, हमको ऐसा है, फलां फलां बहाने बनाकर वहां से अपने 300 साथियों को लेकर निकल गया। बचे कितने? 700 बचे। उसमें से कुछ सहाबा जो कमजोर नए नए इस्लाम कबूल किए करने वाले थे, जो नए नए इस्लाम में आए हुए थे, अब उनका ईमान कमजोर था, क्योंकि पहले से नहीं ना, थोड़ा ईमान कमजोर था, अब डगमगाने लगा ईमान। भाई कैसा 700 लोग हैं, उतने लोग हैं, 3000 लोग हैं, कैसा लड़ सकते हम उनसे, कैसे जंग कर सकते, हमारे पास हथियार नहीं है, फला नहीं है, फला है। फिर भी दूसरे जो सहाबा थे उनको समझा कर बुझा कर उनको लेकर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के पास गए, पहाड़ को सामने रखे और पीछे जो भी मुशरिकीन थे उनको वहां पर खड़ने के लिए कहा और तरतीब बनाई। 50 सहाबा को चुने, 50 सहाबा को चुनकर बुलाकर बोले कि आप 50 के 50 इस पहाड़ के सबसे ऊपर जाकर खड़े हो जाओ। उनका सरदार, उनके अंदर कमांडर किसको बनाए थे? हजरत जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बोले कि आप इन 50 लोगों की जिम्मेदारी आपकी है, अगर कितना भी हम लोग जंग जीते हारे, यहां तक के परिंदे आकर हमारे गोश्त को उठाकर चक्कर लेके भी जाएंगे, तब भी आप लोग नीचे नहीं उतरना। किसका हुक्म है? किसका हुक्म है? मेरे और आपके नबी का हुक्म है। कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमारे बोटियां टुकड़े टुकड़े हो जाए, आप लोग नीचे नहीं उतरना। सब तीरंदाज थे, सबके हाथों में तीर थी। हुआ ये, शुरू में सारे मुसलमान लड़ते हुए जंग जीतने के करीब थे, बल्कि जीत चुके थे, फतह हो गई थी। अब जो सामान बचा हुआ था वो लोग डर कर कुफार अपने तीर, अपने तलवार, घोड़े, जो भी खाने पीने का सामान लाए थे पूरे का पूरा छोड़कर भागकर चले गए। मुख्तसर करके बोल रहा हूं, निकल कर चले गए। जैसे ही जा रहे थे मुसलमान, अब जो सामान बचा हुआ था पूरा निकल कर अपने कब्जे में ले रहे थे, अपने हिस्से में ले रहे थे। अचानक जो 50 सहाबा थे उसमें से कुछ लोग नीचे उतर गए, फट 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 नीचे उतरने लगे। क्यों? अब हो गया भाई, जंग जीत गए। हालांकि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कह रहे हैं कि सहाबा मत उतरो, अल्लाह के नबी ने उतरने से मना किया है, मत उतरो मत उतरो। कोई भी सुने नहीं। पूरे आधे से ज्यादा सहाबा उतर गए, सामान को लूट रहे हैं, ले रहे हैं, जमा रहे हैं। उतने में एक बहुत चालाक
पहले सहाबी नहीं थे, बाद में जाकर सहाबी बने। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इतना ज्यादा दिमाग दिया था। वो सहाबी का नाम क्या? हजरत खालिद बिन वलीद। सुभान अल्लाह, उनके बारे में अगर पढ़ेंगे, उनकी सीरत को पढ़ेंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ईमान हमारा ताजा हो जाएगा। सिर्फ उनके नाम पर कई लोगों ने किताबें लिखी है, सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद के नाम पर। जब इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम लाने से पहले जितने जंग लड़े वो सारे के सारे जीते। इस्लाम लाने के बाद जितने जंग लड़े वो सारे के सारे जीते। इस्लाम लाने से पहले काफिर बनकर जितने जंग लड़े वो भी जीते, और इस्लाम लाने के बाद मुसलमान होने के बाद अल्लाह के नबी ने उनके खुद कमांडरी में कई जंगे लड़ने के लिए अल्लाह के नबी भेजे, और सारे के सारे जीत कर आए। उनके जिस्म के अंदर एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था कि वो साफ हो, बल्कि पूरे जिस्म में वो जख्म के टुकड़े थे, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं यहाँ, बगैर डरे के सीधे निकल जाते थे, लड़ना शुरू कर देते। बल्कि इस्लाम लाने के बाद तो उनकी ख्वाहिश ये थी, हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, अल्लाह मैं तेरी राह में शहीद होना चाहता हूँ, अल्लाह मैं तेरी राह में शहीद होना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा उनकी ख्वाहिश थी, बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। लेकिन हुआ ये अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह जिसको जैसी मौत देना चाहेगा, अल्लाह जिसको जैसा रिस्क देना चाहेगा वैसा देता। लेकिन उनकी मौत नॉर्मल हुई, अपने बिस्तर पर हुई, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी बड़ी, इसीलिए सीधे तलवार लेते थे, सीधे बीच में जाकर घुस जाते थे, किसी से डरते नहीं थे। अब उनको मालूम हुआ खालिद बिन वलीद को, सहाबा ये सारे के सारे उतर रहे हैं, पीछे से जाते हुए जा रहे थे पीठ पलटाकर, अचानक अपने घोड़सवारों को लेकर, उनके सामने वालों को लेकर पीछे से आए और मुसलमानों की गर्दन उड़ाना शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिए। मुसलमान जीती हुई जंग हारे। आगे बताता हूं क्यों जीती हुई जंग हार गए, अब खलास हो गया। अचानक उतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे गिरने की वजह से आपके दांत शहीद हो गए, आपके पेशानी पर बहुत ज्यादा मार लग गया था, जो हेलमेट पहने थे वो भी अंदर पूरा घुस गया था, यहाँ पर ये पूरा घुस गया था, उसको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। इतने में इब्लीस ने, शैतान ने एक चाल चली, सारे लोगों के दिलों के अंदर ये डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर नीचे गिर गए थे, तो कहा कि लोगों बोलो कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया, मोहम्मद मर गया। अब जो सहाबा के कानों में वो का आवाज पड़ी, सहाबा पूरे परेशान हो गए, बेजार हो गए। वाह, चलो अब मोहम्मद ही चले गए, हमारा जो सरदार था, हमारा जो कमांडर था, हमारा जो रहबर था, हमारा साथ छोड़कर चला गया, अब हम कहीं भी काम के नहीं। अब सहाबा का ईमान कमजोर हो गया, ढीले पड़ गए, सारे सहाबा कमजोर हो गए, ढीले पड़ गए। अचानक बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहाबा डरो मत, मैं जिंदा हूं। ये सुनना था जिनका ईमान कमजोर हो गया था, जो ढीले पड़ गए थे, पूरे जोश में आ गए, पूरे सहाबा जोश में आ गए, फिर तलवार लिए, फिर हल्ला बोले, फिर लड़ने के लिए निकल गए। फिर वो जितने लोग मुशरिकीन आकर लड़ रहे थे, मार रहे थे, डर कर पीठ पलटाकर बाद में वापस चले गए। इससे क्या मालूम होता है? अगर कोई नबी की नाफरमानी करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी सजा पहले दुनिया के अंदर ही बताएगा। खुद नबी को मार लगा, खुद नबी को नुकसान हुआ, 70 सहाबा मारे गए, बड़े बड़े सहाबा, और कई ऐसे सहाबा को उनके जिस्मों के अंदर 90 जगह क्या है, तलवार का मार लगा था। कितने है, इतना जी हमारा जिस्म कितना है, उतने छोटे जिस्म के अंदर 90 मकामात पर, 90 जगह पर तलवार की मार लगी होगी। सोचो कितना ताजा ईमान होगा, कैसे मुसलमान थे, सुभान अल्लाह। तो हुआ ये, बाद में सारे सहाबा चले गए। अल्लाह तबारक व ताला की अगर हम नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर भी सजा देगा और आखिरत के अंदर भी सजा देगा। खुद नबी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? खुद नबी को नुकसान हुआ। अब थोड़ा हमारी जिंदगी के अंदर हम झांक कर देखें, हमारी गिरेबानों के अंदर हम झांक कर देखें, हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, कितने मर्तबा कितनी चीजों में हम नबी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हमारी नमाजों में नबी की मुखालफत, खाने पीने में तो अल्लाह बचाए, ऐसी मुखालफत, सुबह अल्लाह रहम करे सब पर, खास कर नौजवानों पर। साथ अगर अपने दोस्तों के साथ गए खाने पीने के लिए, तो स्टाइल से पहले सीधे हाथ से बॉटल खोलते, बाद में पीते कौन से हाथ से? क्यों? स्टेटस बताने के वास्ते। अगर चम्मच से कोई चीज खाना तो सीधे हाथ का इस्तेमाल करना, अल्लाह रहम करे, कोई भी नहीं करता।
खाते यही हाथ से स्टाइल से, अगर चाय पी रहे हैं तो यही हाथ से, बाएं हाथ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐ लोगो तुम सीधे हाथ से खाओ। बल्कि एक बच्चा आया था अल्लाह के नबी के पास, आप सीधे बीच में हाथ डालकर खाना शुरू किया तो अल्लाह के नबी उसका हाथ पकड़कर बोले या गुलाम, ऐ बच्चे सम बिल्लाह, अल्लाह का नाम ले पहले, कुल भी अमीनी, कौन से हाथ से खा? दाएं हाथ से। बाएं हाथ से? कौन से हाथ से? सीधे हाथ से। दाएं हाथ से खा। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम सीधे हाथ से खाओ। हम हर चीज में नबी की मुखालफत, हर चीज में नबी की मुखालफत। बाद में रोना रोते नहीं, मुसलमानों को बहुत सता रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर बहुत अजाब आ रही, कई को ऐसा आ रहा है कि नहीं मालूम, मुसलमानों के ऊपर बहुत सजा हो रही, कई को हो रही कि नहीं मालूम। हम सुबह उठने से लेकर शाम तक सिर्फ नबी की मुखालफत, नबी की मुखालफत। कोई भी बात अल्लाह के नबी की हम नहीं सुनते तो फिर क्या अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाजिल करता? क्या अल्लाह तबारक व तआला अपना अजाब ही नाजिल करता? हम सुबह से लेकर शाम तक वही काम है हमारा, सिर्फ नबी की मुखालफत हर मामले में, हर खाने पीने में, सोने जागने में, अपने भाइयों के साथ। क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, हम बुरा सलूक करते हैं। जो बात जैसा कुरान में है उसका उल्टा करते हैं, जो कहते हैं उसका उल्टा हम लोग करते हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि हम नबी की मुखालफत करने से बचें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। देखिए फिर यहूदियों की करामत यहाँ से शुरू हो गई। ये लोग सुधरते नहीं थे जी, क्या तो भी करो, बड़ी बदमाश कौम, इनके बारे में क्या बोलना समझ में नहीं आता। अल्लाह रहम करे। एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत क्यों नाजिल की, एक मरतबा पहले आयत का तर्जुमा सुन लें। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। लक़द समिअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन लिया, क़ौलल्लज़ीना क़ालू, उन लोगों की बातों को जिन्होंने कहा, क्या कहा? इन्नल्लाहा फ़क़ीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह फ़क़ीर है, अल्लाह मोहताज है, अल्लाह भिखारी है, अल्लाह भीख मांगता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने इस बात को सुन लिया। व नहनु अग़निया, और उन्होंने कहा कि हम बड़े मालदार हैं। कौन कहे? यहूदियों का है, यहूदियों ने कहा। कब? एक मरतबा पूरी यहूदियों की जमात एक जगह बैठी हुई थी, वहां से एक सहाबी का गुजर होता है। कौन? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु वहां से जाते हैं। जैसे ही हजरत अबू बकर वहां से जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग शरारत करने के लिए, सताने के लिए बोलते हैं कि भाई जो मुसलमानों का जो रब है, मोहम्मद का जो रब है, मोहम्मद का जो अल्लाह है वो फकीर है, बल्कि हमें मालदार है, हमें मालदार है। मोहम्मद का जो रब है, मुसलमानों का जो अल्लाह है वो फकीर है, उसको खाने पीने की जरूरत पड़ती है। कोई भी साहब, वो भी हजरत अबू बकर जिनका नाम मुसलमानों में बहुत बड़ा, जो बहुत ज्यादा ईमान वाले, अगर नबी के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ कोई भी बात सुनते तो बर्दाश्त नहीं करते, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। गुस्सा आया, सीधा गए, जो बोला था रख कर एक तमाचा दिया उसका, एक ही एक खींच कर एक मारे और वापस आ गए सीधा। अब ये लोग यहूदी थे, बहुत चालाक थे, साजिश करने, बदला लेने में भी बहुत ज्यादा चालाक थे। अब आए, क्या करे? ऐसा नहीं करना, एक काम करेंगे, पूरे मुसलमानों को बदनाम करके छोड़ेंगे। एक दिन के बाद सारे यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर बोले, ऐ मोहम्मद, तुम अपने साथियों को क्या दीन सिखाते हो? कैसा दीन सिखाते हो? क्या तुम्हारे दीन के अंदर बदला लेना जायज है क्या? तुम्हारा जो साथी है अबू बकर आकर हमारे साथी को खींच कर मारा। देखिए कैसे चालाक थे। क्यों मारा? इन्हें बोले, क्यों मारा? इन्हें बोले, आकर बोले तुम्हारा साथी आकर खींच कर मारा। अब अल्लाह क्या, सारे लोग बोल रहे हैं कि हाउ हाउ मारा, मारा है, मारा मारा। कोई भी हजरत अबू बकर के हक में क्या है, गवाही देने वाला नहीं, हजरत अबू बकर की बात सुनने वाला नहीं। अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी, मैं इसलिए नहीं मारा, इसलिए मारा कि उन्होंने अल्लाह को गाली दी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बेचैन हो गया, इसलिए मैं अल्लाह के नबी मारा। अब कोई भी गवाही देने वाला नहीं। आखिरकार अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ अबू बकर, तुम बदला देने के लिए तैयार हो जाओ, वो लोग आपसे बदला लेंगे, आप यहाँ पर आ जाओ। हजरत अबू बकर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, आ गए, तैयार हो गए, खड़ गए, आकर खड़ गए। अब देखिए रब का करिश्मा, अल्लाह तबारक व ताला की मदद अपने नेक बंदों के साथ कैसी होती है। अल्लाह तबारक व ताला जिसकी मदद करना चाहता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। जिसको अल्लाह तबारक व ताला बर्बाद करना चाहता है उसको भी कोई भी नहीं रोक सकता, कुछ भी। हम कितने भी तदबीरें कर लो, कितने भी प्लान बना लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की, लक़द समिअल्लाह
اے محمد اللہ رب العالمین نے سن لیا ہے کہ کون ایک گالی اللہ رب العالمین کو دی. آپ حضرت ابو بکر کو چھوڑو. حضرت ابو بکر ہلکا ہو گئے اور حضرت ابو بکر یہاں سے بری ہو گئے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر کے سلسلے میں آیت نازل کی. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی. اسی لیے اگر ہم بھی نیک رہیں گے, سچے رہیں گے, اچھے بن کر زندگی گزاریں گے, اگرچہ کوئی بھی ہم پر الزام لگائے گا, ہم کو کوئی گالی دے گا یا ہمارے خلاف کوئی سازش یا پلان بنائے گا, تو ہماری مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اللہ رب العالمین نے مدد کیا. آخری 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران کی آخر میں سارے مسلمانوں سے, سارے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو, بولتے نا میں سکسیس ہونا دنیا کے اندر, کیسا سکسیس. صرف اللہ رب العالمین 4 باتوں میں ختم کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 4 چیزوں کو اپناؤ. سب سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر تکلیف آئے گی, آپ کو غم ہوگا, آپ کو پریشانی ہوگی, آپ کو مصیبت ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوتا جائے گا آپ کی دنیا کے, آپ کی زندگی کے اندر. سب سے پہلے آپ کیا کرو, اپنے اندر کیا پیدا کرو, صبر کو پیدا کرو. وصابروا, اگر کوئی تکلیف میں ہے تو خوش نہیں ہونا, جا کر اس کو اس صبر کی تسلی دینا. ایک مرتبہ میں ایک حدیث پیش کیا تھا, آج سے 1.5 یا 2 مہینے پہلے. یہ بتایا تھا اس میں کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو تسلی دیتا ہے, دلاسا دیتا ہے, اس کو تسلی دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ایک انعام دے رکھا ہے. کیا ہے؟ میں بولا تھا رمضان سے پہلے, اگر کوئی اپنا بھائی اگر پریشان ہے, ٹینشن میں ہے, اس کو جا کر تسلی دیتا ہے, اس کو دلاسا دیتا ہے, سکون دلاتا ہے کہ نہیں بھائی جو ہوا ایسا, جو بھی تسلی دیتے نا, کسی کے انتقال کے بعد گھر کو جا کر دلاسا دیتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو کیا کرتا جی؟ بولا تھا میں, کل قیامت کے دن عزت والا جوڑا سب لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر پہنائے گا. سبحان اللہ. عزت کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عزت کے کپڑے, عزت کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پہنائے گا. ہونا نہیں ہونا؟ تو اسی لیے اگر کسی کے گھر میں کہیں جنازہ ہے, یا کسی کو کوئی اپنی تجارت میں اس کو نقصان ہوا ہے, یا ہمیشہ وہ آدمی پریشان ہے, تو دیکھ کر ہنسنا نہیں. میں بولے تو سنا نہیں تو اچھا ہوا, جاؤ, نہیں بولنا, جا کر بولنا نہیں بھائی جو ہوا سو ہوا. تسلی اگر 2 منٹ کی تسلی جی, 2 منٹ کی تسلی جا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا, کل قیامت کے دن ہم کو عزت کا لباس پہنائے گا. سبحان اللہ. 2 چیزیں ہوئی, صبر کرنا, اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو صبر کی امید دلانا. ورابطو, جو کام کر رہے ہیں اس میں جم کر کام کرنا, عبادتوں میں, سب میں, ساری چیزوں میں دل لگا کر کام کرنا. واتقوا اللہ, آخری چیز ورابطو واتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. گھر میں ہو, گھر کے باہر ہو, بس میں, سفر میں ہو, حضر میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اگر ایک چھوٹی چیز ڈر, تقوی, خشیت ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ جائے گا, تو سمجھ لو کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. یہ سورۃ آل عمران آج مکمل ہوئی. سورۃ آل عمران کا مکمل خلاصہ تو ہم لوگ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہر پوری قرآن مجید کا, بلکہ کچھ آیتیں جو منتخب آیتوں کو مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنے, قرآن مجید کو سننے اور قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.